Hare Krishna. So, just as Apru Shampru said, ki anything is there, we'll reach out to you for services. So on WhatsApp it's Bhimraj. So if you see ki it's not Brajajan Priya, so don't ignore that same person. Okay. Okay. So starting with the second class after the wonderful start of the session of the camp by Rajesham Prabhu. So we are having actually these are not the guests. We are all the guests. They are the hosts actually. So, His Grace Atmarang Gaurang Prabhu, he's from ISKCON NVCC Pune only. So he came to Krishna consciousness back in 2005. So he's been now close to 21 years. So after reading Bhagavad Gita during his college days, he has done his engineering from Kurukshetra University. So he's still in that warrior spirit. Lot of services. uh, he has done his MBA and PhD from Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), a very well-known college. He's working with Tata Consultancy Services as a client partner. Currently, he's performing various services in temple, congregation, counselor, preaching in colleges like IIT Powai, BJ Medical College, etc. He has been handling Nityanand Sabha Forum, which trains young and aspiring Grahastas for last 15 years. And from last 2 years, he has been made chairman for Nityanand Sabha. So you see, from last 2 3 years, the expansion of Nityanand Sabha and so many activities they have exponentially grown up under Proji's guidance. And his good wife, her grace Leela Radhika Mataji, and he got married in through ISKCON in 2009. And Mataji came to Krishna consciousness during her college days in year 2000. 2000 में मतलब कितना हो गया 26 years now. She is the founder of devoteesati.com, a matrimonial website for devotees. She is also a science teacher and teaches complex science topics giving spiritual perspective. She is involved in various services like preaching, mentoring Matajis and couples, cooking for deities, dressing deities, etc. They both have two wonderful children, Chaitanya and Yaduvar. Together, both of them have recently launched Divya Grahastha Academy. I guess most of us are part of that channel. A forum where they train Grahasthas to lead a balanced life centered around the Lord. So they themselves are a very wonderful example of the couple who has been centering their life around Krishna and devotees for serving devotees. So we'd like to welcome them or thank them basically for arranging this setup for all of us by three times loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna. Over to you, Roji and Mataji. Hare Krishna. So we'll also do some management on the seat. So it's a mixed role. Thank you. Hare Krishna. It's coming up. Okay. We'll do a bit of kirtan and then we'll start. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतार्णं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम Hare Krishna. So we are very happy to welcome all of you for this Nityanand Sabha Janva Devi Sabha camp 2026. This camp is an attempt uh, to prove the saying prevention is better than cure. So we in this 3 days when we'll be orienting about themes, but the intent of this camp with now almost I think 20 years have passed of Nityanand Sabha as a series, and 2 years Janva Devi Sabha got added 2 years back, and I think we got we are trying to serve this need of devotees to the extent possible. Devotees are able to understand the mindset of married life and enter it in such a way that they come out successful. Okay, they have a very happy, as jerk free as possible,
journey in their Grahastha life. And our movement is a testimony of that, our history of our Krishna consciousness movement. When it all started, no, Srila Prabhupada, 99% of the devotees used to stay within the temples. And now the equation is exactly opposite, you know. Only 1% is inside. Probably not even 1%, lesser than that. And most of the devotees are outside. They're working, they're getting married, having kids. And you know, whether you are a devotee or not a devotee, you need to cook rice on the gas, not below the gas. So some things will not change, but some things have changed. How this changing, unchanging will come together becomes the topic of discussion. So, like this, we understand that this is the need, and testimony of this need is that the highest ever participation of Nityanand Sabha and Janma Devi Sabha camp in this year. You know, we have crossed 300 participants. What used to be 120, 130, now we are 300 plus. And I think time is not far. We'll have uh, over 500 participants in next couple of years, and we are seeing a lot of devotees coming from outside Pune. Although we are not able to arrange for the accommodation for a lot of Matajis and all, but seeing the responses, seeing the need, especially for couples also, we plan to do better next time in terms of, you know, arranging of the accommodation so that many devotees can come and, you know, take the advantage of these camps. So thank you so much all for coming. We heartily welcome all of you. As I told with the host, you are the guest, okay? And you will see us very often in these 3 days. And we have tried to get the best possible in Grahastha training for all of you in these 3 days, okay? So thank you all very much for coming once again, and please forgive us for any inconvenience you must be having or you had. We are trying our best to make it as convenient as possible, but still there may be discrepancies. So kindly forgive, but take the best advantage of this whole arrangement. Thank you so much. Hare Krishna. Okay, so with this, I think we'll start off. We had Aisham Prabhu session, and we now launch the theme of this camp. Okay. Uh, I think last time the theme of the camp was receive, revive, and give. And this time the theme is Purnat, Purnam, Udachyate. कहाँ पे आता है ये? ईशोपनिषद में. Can somebody just recite that verse? Purnamādāya. So in the beginning, first we'll have a icebreaker activity, okay? Before beginning the session. So you all have received one paper, I think. आप सब लोग को मिला है एक paper. अच्छा, okay. So सबको एक एक paper मिला है. So what we have to do is before beginning the camp, we'll set certain goals, okay? So in that paper, please make sections like this, make a table like this, okay? And you have to write 4 goals of your life: spiritual, relationship, career goals, and your personality or your health goal. And on the other side, you have to write, आपको लिखना है कि क्या obstacles आ रहे हैं आपके निजी जीवन में उस गोल को फुलफिल करने के लिए. It could be some external circumstances, or it could be your inner fear, या फिर कोई particular habit है जिसकी वजह से हम वो goal achieve नहीं कर पा रहे हैं. So you have 5 minutes to complete this activity, and please don't write your name on the paper. किसी को भी अपने पेपर पे नाम नहीं लिखना है और इसको complete करना है इस goal को. And then this goal will come to us, and we'll not have any paper, okay, any name with us. So and at the end ये आप लोग के ही पास जाएगा. We don't know किसका क्या है, हमें नहीं पता है, okay.
हाँ, तो So आप वो भी, लोग टेंशन मत लो कि बहुत अच्छा गोल लिखना है, क्योंकि एनीवेज आपका नाम नहीं होगा उसमें। हाँ तो जो आपका नाम, एक्चुअल है वही लिखो, ठीक है? and the goals that you are writing has to be very specific. Okay, the goals have to be specific. ऐसे नहीं है कि I want to become a good devotee, I want to become a good wife, I want to become a good husband. ये नहीं, ये बहुत जनरल, ये बहुत ambiguous है. Specific होना चाहिए. Like, you know, I want to say, if you want to write spiritual goal, so I want to complete Bhagavad Gita in next 6 months by reading 30 minutes daily of Bhagavad Gita during before my bedtime or immediately after my japa time. Okay, so this is very specific. Okay, it has to be specific, it has to be measurable. Okay, measurable matlab कि इतने, यू नो, जैसे मुझे ये भगवत गीता कंप्लीट करनी है या फिर 700 वर्सेस भगवत गीता के मुझे कंप्लीट करना है, दैट इज मेजरेबल. ओके, एंड देन इट हैज टू बी टाइम बाउंड. जैसे मैं 6 मंथ्स में कंप्लीट करूंगी ये. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअल. वैसे ही रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू spend 30 minutes, or I want to spend 15 minutes of quality time with my spouse every day, say for next 2 months. एक्चुअली स्पिरिचुअल और रिलेशनशिप गोल्स जो रहते हैं ये ऑन गोइंग रहते हैं, बट करियर गोल्स थोड़े स्पेसिफिक बाउंड रह सकते हैं, टाइम बाउंड. ओके, सो लाइक दैट. Or for spiritual, you can just write, I want to spend say 15 minutes of quality time with my spouse daily before bedtime. और इफ यू आर अनमैरिड यू कैन हैव अ गोल कि मैं अगले 6 महीने या 2 साल में शादी करूंगा या करूंगी, ठीक है? एटलीस्ट मैं डिसीजन ले लूंगा कि मैं करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला. आजकल वो भी एक हो रहा है, बट सो बी स्पेसिफिक. ओके, सो अगर अनमैरिड है तो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी हम लिख सकते हैं. So like that, career and personality or health goals. So you have 5 minutes, write down your goals and obstacles. What obstacles you feel in your personal life that is stopping you to achieve your goal. goal setting is so difficult for us, you know. We generally keep living life, you know, like this auto mode में चलते रहते हैं हम लोग. Anyways, we'll come to that. Sorry, I distracted. Abhishek Prabhu, we have sent a case study on NS core team. Send it in both the groups, case studies. Huh? Case study day 1. After some time.
एवरीबडी इज राइटिंग ना, बैक बेंचर्स? ठीक है, गुड। बैक बेंचर का डीएनए होता है ना कि रिटर्न नहीं करता है। ओके, लास्ट मिनट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? और बाप रे, बड़ा ही डिफिकल्ट नंबर है तो। लास्ट 30 सेकेंड। हाँ, ओके, डन। रीबोल। हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई, कैंप इसी के लिए नहीं है, सिर्फ बहुत कुछ करना है। हाँ, बहुत स्लो कर रहे हो, अभी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। लास्ट ग्रेस का 1 मिनट है अब आपका। ओ यस भाई, पूरा हो गया अब तो। अभी तक डिफिकल्टीज नहीं लिखी। एनी ऑब्स्टेकल इन राइटिंग ऑब्स्टेकल्स? टाइम। आई कांट हेल्प। हो गया ना सबका? डन? ओके। हम हिंदी प्लस इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश रखेंगे। वैसे भी ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया है तो हमें देसी होना ही पड़ेगा। ओके, सो विल बिकम दैट। तो देखिए कितना मुश्किल है गोल सेटिंग। तो अभी वील डिस्कस मोर ऑन दिस वेरी सिंपल थिंग, बट एज इंडियंस वी आर ऑलवेज इन ऑटो मोड। देखिए हमेशा मतलब वी आर रेडी टू वर्क वेरी हार्ड, बट फॉर व्हाट? फिर हमें पता लगता है नहीं, बैक टू गॉड जाना है। वो तो लाइफ टाइम के बाद जाना है। इस लाइफ टाइम में क्या गोल्स हैं, फिर उसको लेके देन वी आर लाइक नहीं नहीं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, जस्ट कीप्स ऑन, नो। बट गोल सेटिंग इज अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी, very powerful activity. So we'll delve deeper into it. Over to you. So Ishopnishad verse, coming back to this verse, we'll come back to this goal activity again. So why we did this, हमने ये क्यों किया, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे. So ओम पूर्णामद पूर्णामिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते. तो भगवान क्या है? कंप्लीट हैं. और सुप्रीम लॉर्ड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, और भगवान से जो निकल के आ रहे हैं वो यूनिट्स क्या हैं? वो भी कंप्लीट हैं. दैट मीन्स जो जीव निकल के आ रहे हैं भगवान से वो भी कंप्लीट हैं. ईशोपनिषद बताता है कि फिर हम सब लोग यहाँ भौतिक जगत में रह के व्हेन वी आर ऑल्सो कंप्लीट यूनिट्स coming out from the complete Lord, why do we experience incompleteness?
क्यों इनकम्प्लीटनेस लगती है? अधूरापन लगता है ना, दुख झेल रहे हैं ना हम सब लोग यहाँ पे, खोखलापन लग रहा है, तो ये इनकम्प्लीटनेस क्यों है? ईशोपनिषद क्या बोलता है इसका आंसर? किसी को पता है? ईशोपनिषद इसका आंसर बताता है. वाई डू वी एक्सपीरियंस इनकम्प्लीटनेस व्हेन वी आर ऑल्सो when we are also part and parcel of that complete whole and everything that comes out from him is complete, then why do we experience incompleteness? हम क्यों incompleteness experience कर रहे हैं? Correct. Yes, somebody said. Microphone. Yes. We are disconnected from the complete. Disconnected. Very good. Hari bol. Because we are disconnected. The answer is disconnection, because we are disconnected from the Lord and from His energies and from His laws. क्योंकि हमारा ये डिस्कनेक्शन हो गया है भगवान से, भगवान की एनर्जी से और भगवान के लॉज से, इसलिए हम लोग ये इनकम्प्लीटनेस एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये डिस्कनेक्शन क्यों हुआ? हम सबको पता है, वी ऑल वांटेड टू एंजॉय separately, correct? So then Lord manifested this material world. So it is false ego actually, because we wanted to enjoy separately. What Krishna did, he expanded himself. कारणोदक्षाय विष्णु, देन गर्भोदक्षाय विष्णु, देन क्षीरोदक्षाय विष्णु. कारणोदक्षाय विष्णु के बॉडी से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं. और क्या आता है सबसे पहले मटीरियल क्रिएशन में? प्रधान. इफ यू ऑल हैव स्टडीड क्रिएशन इन भागवतम, तो सबसे पहले भगवान के बॉडी से जो प्रधान निकल के आ रहा है, उसमें फिर लॉर्ड ग्लैंसेस. और जब भगवान ग्लैंस करते तो भगवान क्या डालते हैं उसमें? जो प्रधान है वो द्रव्य शक्ति है, भगवान ग्लैंस करके क्या डाल रहे हैं? काल, दैट इज टाइम, जीव अलॉन्ग विथ देयर कर्मा एंड स्वभाव. ठीक है, ये भगवान ने उसमें डाल दिया. उसके बाद पूरी हलचल शुरू होती है. देन द एंटायर थिंग, महत तत्व आता है. महत तत्व के बाद भौतिक जगत के लिए आता है सबसे पहले फॉल्स ईगो. तो ये हमारी फॉल्स ईगो है. तभी दैट इज वाई वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लॉर्ड. तो हम सबका ये फॉल्स ईगो है. एंड सी दिस चार्ट, दिस इज गिवन इन भागवत सुबोधिनी, श्रीमद् भागवतम चार्ट ऑफ क्रिएशन. सो सबसे पहले यू कैन सी आफ्टर महत तत्व, पहले कारणोदक्षाय विष्णु ग्लैंसेस ऑन प्रधान, देन कम्स महत तत्व. महत तत्व के बाद आता है अहंकार, दैट इज फॉल्स ईगो. और ये फॉल्स ईगो का एक बड़ा अम्ब्रेला है. इसके अंदर वापस गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस आता है. एंड देन द 23 मटीरियल एलिमेंट्स मैनिफेस्ट, और उसके बाद ये पूरा क्रिएशन शुरू होता है. तो फॉल्स ईगो इज द प्राइमरी थिंग दैट इज कीपिंग अस डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लॉर्ड, हिज एनर्जीज एंड हिज लॉज. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स ईगो? फॉल्स ईगो मतलब क्या, कोई बता सकता है? We are the enjoyers, correct? We are the proprietor, we are the controller, we are the doers, correct? हमारी ये मेंटेलिटी है. तो दिस इज इन ग्रॉसेस्ट फॉर्म. ओके, ग्रॉसेस्ट फॉर्म है फॉल्स ईगो का. और हमारी डे टू डे डीलिंग्स में कैसा दिखता है फॉल्स ईगो? हम नहीं जाके जनरली बोलते ओ आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर. ये है, बट हमारी एक्टिविटीज में ये कैसे दिखता है एक दूसरे के साथ डीलिंग्स में? Misidentification with the body. Okay, so how do you, while dealings, how does it come out with others? With others, with spouse. कैसे आता है ये false ego? Yes? Correct. Our expectations should be fulfilled. मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए. मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए. मेरी बात माननी चाहिए. हाउ डिड ही टॉक लाइक दिस टू मी, और हाउ डिड शी टॉक लाइक दिस टू मी? मेरी बात क्यों नहीं मानी? And this is the way I have always worked, and this is the way I want to always work. Correct? So ये है हमारा false ego. क्या करता है ये false ego? ये false ego, ये हमारे अंदर एक ऐसे फिक्स पैटर्न्स बना दिए हमारे माइंड के अंदर, जो हमारी जो थिंकिंग है उसको लिमिट कर देता है.
हमारा जो वर्ल्ड है ना, इट इज़ वेरी मच लिमिटेड बिकॉज सब कुछ इट इज सेंटर्ड अराउंड us, all our activities. That is why we are here. That is why we are in the material world, because we want to center everything around us, around myself. It should be centered around myself. So then what happens? Fixed patterns ban jate hain hamare, and then that is why we experience these limitations in the world. Correct? Because we are not ready to adjust, we are not ready to cooperate, we are not ready to understand कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्या हम इतने ज़्यादा अपने में caught up रहते हैं और हमें ऐसा लगेगा भी नहीं, it is so subtle, हमें ऐसा लगेगा भी नहीं कि ऐसा हो रहा है. हमें लगेगा नहीं, मैंने तो उसकी बात सुनी, उसने जैसा बोला मैंने वैसे किया, फिर भी वैसे नहीं हो रहा है. All those things happen, you know, but actually subtly देखा जाए तो this is what is happening. ये जो patterns हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हम सबके माइंड में एक पर्टिकुलर माइंड मैप बना हुआ है. एवरीबडी, ऑल ऑफ अस हैव इंडिविजुअल माइंड मैप्स बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. हमारे चाइल्डहुड कैसा था, हमारे चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमास देखे क्या हमने, हमारे चाइल्डहुड में कुछ हमारे पेरेंट्स के साथ उनका आपस में रिलेशन कैसा था, क्या वो लड़ते थे, क्या उनका हेल्दी रिलेशन था, या फिर जो आसपास के रिलेटिव्स थे उनके साथ क्या था. कुछ ट्रॉमास अगर हमने फेस किए, कुछ फ्रेंड सर्कल को हमने अगर ऐसा देखा, और हमारा जो एनवायरनमेंट था, हम बहुत गरीबी में पड़े हुए हैं क्या, बहुत गरीबी में पले बड़े, हमने बहुत स्ट्रगल्स देखी, हमने बहुत लग्जरीज देखी, बहुत पैम्पर्स देखे बचपन से. सो ऑल दीज थिंग्स दे डिसाइड अवर पैटर्न एंड दस अवर बिहेवियर टुडे. हाउ वी आर बिहेविंग टुडे इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स. Yeah. So basically this is very important to understand, you know, so because scriptures have to be practical. हम पढ़ते हैं, एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम पढ़ लेते हैं, एक होता है जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहां पर. प्रॉब्लम इज नेवर इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी. प्रॉब्लम इज हाउ द रबर विल हिट द रोड, हाउ द फिलॉसफी हैज टू बी ब्रॉट, मेड रेलेवेंट टू माई लाइफ. ओके. So this is a vivid example for that, you know. Purna, actually we don't have to go beyond Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita. Okay, it's complete. Actually, it's complete. But the thing is, when we just read it in form of knowledge gathering only, it just remains at that level only. Okay. So false ego, as she very nicely explained, सबसे पहला लेवल यही है, misidentification of the body. ओके, उससे निकलता है डूअर, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप. ओके, एंड देन इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग. हाउ इट मैनिफेस्ट प्रैक्टिकली इज, यू नो, आई डोंट वांट टू, यू नो, दिस इज आई एम राइट, आई एम ओनली राइट. एज शी टोल्ड, देयर इज अ मेंटल मैप ऑल ऑफ अस हैव, राइट. हमने बना लिया. तो जो चीज उसमें फिट होती है ठीक है, जो चीज नहीं होती गलत है. सो आई एम राइट, I keep saying I am right. तो जितनी बड़ी फॉल्स ईगो होती है उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है कि मैं ही. इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस खत्म कर देना अपना, कि रियल ईगो मतलब नो कॉन्फिडेंस, मैं कभी भी सही नहीं हूं, कूद जाओ, मैं हूं ही नहीं सही. वो बात, दैट इज ऑल्सो ईगो, कि मैं सही हो ही नहीं सकता हूं, या ये सोच लेना मैं ही सही हूं. Both are types of false ego. What is the symptom of reduced false ego? And this is why, as no, I'll control that emotional part. Yeah, as she was kind of mentioning, no, it leads to fixed pattern and it leads to less opportunities. अगर मैं यही सोच लिया मैंने कि मैं ही सही हूं, या मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूं, तुमने जो करना है कर लो, तो I have less opportunities to improve in my life. I am closing the options of my life to improve. And to experience a better life. And to experience a better life. क्योंकि मैंने डिसाइड ही कर लिया मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड यही रहने वाला है, इतना ही, उसके ऊपर मैं जा ही नहीं सकती हूं या सकता हूं. Right? And this leads to what? Strained relationships. Strained relationships. वैसे कहने बड़ा इजी है, ईगो है इसलिए रिलेशनशिप नहीं बनते प्रभु जी,
egoistic हैं प्रभु जी, but ये ego is such a big ocean within us, which is it's like a big wall, okay, and it's not allowing me to see. So imagine my miniaturized size version is this, and I have a big wall in front of me. तो हालांकि उसके पार दुनिया बड़ी सुंदर है, पर मैं क्या है, उस दीवार की वजह से आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट लाइज अहेड, व्हाट लाइज अहेड. कैन यू इमेजिन फिगरेटिवली क्या हो रहा है? ओके, सो ऑल वी हैव टू डू इज इंक्रीज आवर साइज, increase the size of our consciousness, so that what looks like a wall right now is nothing but a pebble. जो वॉल ब्लॉक कर रही है वो वॉल है ही नहीं, तो पेबल है. प्रॉब्लम यह है कि मैं छोटा हो गया हूं. आई हैव अडॉप्टेड अ मिनिएचराइज वर्जन. सो स्पिरिचुअल लाइफ इज अबाउट Prabhupada. There is one lecture of Prabhupada where Prabhupada says in the first canto, and the chapter's name is Expansion of Consciousness. And then Prabhupada says, earlier we just think about our own body. We have heard this so many times, right? Then we think about our family. Then I think about, my society, then my nation. Krishna consciousness means my consciousness expands to Krishna. That's how Prabhupada says this. Okay. That's how teachings of Lord Kapila talks about it, expansion of consciousness. The same Arjun was not able to see any option. Okay, what did Krishna do? Krishna ने क्या किया? Krishna helped Arjuna अपनी चेतना को expand करो. संकुचित से विकसित हो जाओ, कृपणा से ब्राह्मणा हो जाओ. कृपणा मीन्स narrow, brahmana means broad. That is what consciousness is. But ये करने के लिए, ये तो पता है, पर क्यों नहीं कर पाते हैं? And the other, will come to that point. So it leads to strained relationship. हर कोई ये सोचता है कि मैं ही सही हूं रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही कैसे? मैंने ऐसा सोचा है, मैंने मेरे पिताजी को यही करते देखा है, कि वो मेरी माता को बोलते थे चुप रहो, तुम्हें फाइनेंस में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. और कई बार तो मैंने उनको चांटा लगाते भी देखा है. तो मैं भी वो प्रथा कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वो देखा है, वो सीखा है. सो थिंग इज, आई एम राइट, आई कैन नॉट इंप्रूव, देयर इज नो बेटर वे ऑफ लिविंग लाइफ. दैट इज व्हाट फॉल्स ईगो इज. डू वी थिंक लाइक दैट? क्या हमें ऐसा लगता है? क्या हमें लगता है कि हम जब रिलेशनशिप में घुसते हैं हमेशा रोड ब्लॉक्स आते हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें क्वेश्चन करते हैं और हम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि हम बंधे हुए एक जगह? आर वी एंकर्ड इन आवर लाइफ? वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स. एंड व्हाट आल्सो इट लीड्स टू इज अनकंट्रोल्ड इमोशंस. सो ऐसा कितनी बार होता है कि हम लोग किसी ने एक छोटा सा सेंटेंस पास कर दिया. सपोज किसी ने बोल दिया कि तुम्हें इतना सा भी नहीं पता, इतना भी नहीं पता है, पर उसको हमने इतना बुरा मान लिया. ऐसी कैसे बात कर दी उसने मेरे साथ, ऐसे कैसे बोल दिया? और फिर हम उसको लेकर पूरा दिन हमारा खराब जा रहा है. या फिर दिस इज द वे शी टॉक टू मी, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला? तो ये क्या है? अनकंट्रोल्ड इमोशंस है. या फिर किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत इरिटेशन हो गया. या फिर अगर खुश हो गए तो इतने खुश हो गए, कोई लिमिट ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, कुछ चलते जा रहे हैं. सो ये अनकंट्रोल्ड इमोशंस, एक्चुअली इमोशंस क्या हैं? इमोशंस हमारे बॉडी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, हमारे माइंड की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली. Emotions are giving us information of our mind, what is happening in our mind. So like अभी किसी को जैसे तबीयत खराब होती है कभी, तो फीवर आ गया, फीवर आ गया तो हम लोग रुक जाते हैं ना. हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, अपना ऑफिस होता है, जो भी होता है, वी टेक अ ब्रेक. करेक्ट? जब तक वो फीवर से रिकवर नहीं होंगे, 3 दिन का 4 दिन का हमें ब्रेक लेना पड़ता है. फीवर क्या है? फीवर इज अ डिजीज? नो, इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज. कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, वो फीवर बताता है कि कोई इन्फेक्शन पकड़ा है आपकी बॉडी ने, और बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट विद दैट इन्फेक्शन. जो बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स आए हैं, उसको मारने का प्रयास चल रहा है. इसलिए बॉडी ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया है ताकि वो जर्म्स अंदर मर जाएं. तो जैसे फीवर आया, हमें पता लग जाता है ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम इनसाइड माय बॉडी, सो वी गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी, सो वी टेक रेस्ट. बट
Do we take pause when our emotions are giving us information of our mind? Do we ever take a pause and understand what is happening in my mind? Why am I getting so irritated? Why am I getting so angry? Why I sometimes become so happy? Why I sometimes become so demotivated? कभी कभी मैं इतना डिप्रेस क्यों चली हो जाती हूँ? कभी कभी मैं इतना ओवरथिंक. Why do I overthink so much? Why do I give undue उसको इतना पत्ता क्यों देना है इस चीज को? कोई एक चीज हो रही है तो इतना क्यों दे रही हूं मैं? तो ये सब इंफॉर्मेशन है एक्चुअली कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है. तो वी शुड पॉज, वी शुड रिफ्लेक्ट what is happening in our mind and why it is happening. So that is why we are here actually, to understand these subtle emotions and then change them so that we can eventually become a good person with ourselves. We repair with ourselves. We are all actually inherent. So Jiva Goswami says in one of his commentary that Jivatma is inherently actually वो good है. बट क्या हो गया कि कंडीशनिंग्स और हमारे जो हम वॉट एवर एक्सपीरियंसेस वी हैव गॉन थ्रू इन दिस लाइफ और अवर पास्ट लाइफ्स, उसकी वजह से वी आर कैरिंग ऑल दीज थिंग्स, अवर स्वभाव. जैसे भगवान ने जब इंजेक्ट किया था शुरुआत में, तो काल कर्म जीवा अलॉन्ग विथ कर्म एंड स्वभाव, तो हम सब अपना स्वभाव लेकर आ रहे हैं पहले के इससे, और फिर प्लस जो हमारी इस लाइफ में हमारे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं. तो व्हेन वी गिव अप दिस काइंड ऑफ स्वभाव that is limiting us to experience a richer life, to have a better relationship with myself, with others, and definitely ultimately with the Supreme Lord, then only we'll experience that Purnat Purnam Udachyate, that is completeness. So can I change what I think? Can I change my nature? See, to think, even animals can think. But to think what to think, that is human life. Okay? Animals will think. They think, na cat. But to think what to think, that is human form of life. तो ये सोच लेना कि यही हूं मैं is actually animalistic in nature. Right? So, thank you. हाँ, perfect. हाँ. तो ये डिस्कनेक्शन फिर से, क्योंकि अब हम एक जो कॉन्सेप्ट अभी कवर किया, डिस्कनेक्शन यहाँ पे सिर्फ भगवान के साथ, भगवान अकेले नहीं है. प्रभुपाद बोलते हैं ना एक लेक्चर में, कृष्णा इज नेवर अलोन, कृष्णा इज ऑलवेज विद हिज एनर्जीज. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डिस्कनेक्शन फ्रॉम कृष्णा, इट ऑल्सो मीन्स कि भगवान की शक्तियों से भी हम प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, भगवान के लॉज से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, भगवान की इंस्ट्रक्शन से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है. ये सब भगवान से डिस्कनेक्शन ही है. और इन सब का कारण क्या है? फॉल्स ईगो. और फॉल्स ईगो हमारे लिए कैसे मैनिफेस्ट होती है? इन तरीकों से. अगर आपको लगता नहीं मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, तो अगर ये 3-4 चीजें हो रही है ना, तो आप समझ जाओ कि है अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सबके अंदर है. ठीक है? और अगर अभी नहीं भी है ना, तो मैनिफेस्ट भी होता है. जैसे जैसे रिलेशनशिप्स आएंगे, चीजें आएंगे, तो ये सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे अंदर है कि नहीं है, मेरे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए. और वो मेरे ख्याल से सबको लगता ही है कि है. सब वर्क इन प्रोग्रेस है कि नहीं है? कि कोई यहां पे फिनिश प्रोडक्ट बैठा है? कोई भी नहीं है ना, सब वर्क इन प्रोग्रेस है. रॉ मटेरियल नहीं होंगे, पर वर्क इन प्रोग्रेस तो सारे ही हैं. ठीक है? तो हम सबको इंप्रूव होना है, पर वो इंप्रूव होने के लिए हमें क्या रोकता है? हमारा फॉल्स ईगो. और स्पेसिफिकली हम यहां पे इंप्रूवमेंट की किससे बात कर रहे हैं? इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. क्योंकि अगर मैं भगवान से डिस्कनेक्टेड हूं, तो भगवान की ही तो एक शक्ति है मेरा स्पाउस, या भगवान का ही तो एक इकोसिस्टम है मेरा आश्रम. गृहस्थ आश्रम क्या है? भगवान का ही एक इकोसिस्टम मेरे लिए बन के आया है. लाइक कृष्णा, प्रभुपाद बोलते हैं ना, कृष्णा, why do say that verse is there कि गुरु न सश्यात, नो जननी न सश्यात, क्यों बोलते हैं? they are not Krishna, but they are representing Krishna. They are representing Krishna. Okay? तो पॉइंट यहां पे यह है कि when we are saying disconnection from Krishna,
डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कृष्णाज इकोसिस्टम, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कृष्णाज जो उनकी एनर्जीज हैं, जो उन्होंने हमारे लिए लॉज बनाए हैं इस आश्रम के लिए, उससे डिस्कनेक्ट होना भी भगवान से डिस्कनेक्ट होना है। और ये किस लिए है? क्योंकि फॉल्स ईगो है। अब हम लोग सुनते हैं, जब हम भक्त बनते हैं तो डेफिनेटली एक चीज ऑब्वियसली हमें एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे जीवन में कि हमें समझ में आता है कि जो रेगुलर तरीका है वो गलत है। तो हम इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आते हैं। तो एक भक्त जो है ना, नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा इवॉल्व कॉन्शियसनेस क्यों है? क्योंकि उसने फंडामेंटल समझ लिया कि मेरे जीवन में बदलाव की जरूरत है, ये सिचुएशन गलत है, मेरे को भगवान के धाम जाना है। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो आदो श्रद्धा साधु संग से हमारा चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पर अक्सर हम क्या देखते हैं, जो एक फॉर्मल लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे चेंज है वो आ जाता है, पर जब आत्मीयता वाले रिलेशनशिप होते हैं ना, वहां पे फिर हमारा पुराना जो रूप है वो स्थित रहता है। वो स्थित रहता है। तो हम जब सुनते हैं, जब तक वो पूरी तरह हमारे को बदले, वो अकेला वो प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, दैट ओनली बाय हियरिंग वी चेंज। क्यों टाइम लगता है? कटवंगा महाराज ने बोला 1 मोमेंट। क्यों टाइम लगता है? लास्ट पॉइंट, विलिंगनेस टू चेंज इटसेल्फ। हम सुन तो रहे हैं, पर एक पॉइंट के बाद हमें लगता है नहीं, अब मैं नहीं चेंज कर सकता अपने आप को। तो जो टाइम लग रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल, वो इसलिए है क्योंकि हम लड़ रहे हैं अपने आप से कि मैं चेंज करूं कि नहीं करूं, अपने आप को चेंज करूं कि नहीं करूं। ओके, सो विलिंगनेस टू चेंज एंड टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज इन माय लाइफ। एक पॉजिटिव चेंज मेरे को मेरी लाइफ में लेके आना है, उसके लिए मेरे को कुछ एक्शंस लेने हैं। कुछ भी जादू से नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई जादू नहीं चलने वाला। हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर हम उसके लिए तैयार हैं, इसका मतलब हमारी जो फॉल्स ईगो से बड़े होने की जो जर्नी है, उसके लिए हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं। When there is willingness to change and taking actions towards positive change. Okay? नहीं तो हम सालों साल ऐसे ही सुनते हुए निकाल सकते हैं। सुन लिया, समझ लिया, दूसरों को भी समझा दिया, पर खुद के अंदर बदलाव कब लाएंगे? वो हमें खुद विलिंगनेस होगी, एंड देन सिर्फ विलिंग, ठीक है मैं करना चाहती हूँ, करना पड़ेगा। आगे कुछ वी नीड टू, और आई कैन से एक्चुअली it should be that it should come from inside, that I want to change, I need to change से भी better है I want to change। नीड भी क्या हो जाता है कि कहीं फोर्स आ रहा है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से। आई वॉन्ट टू चेंज बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव अ बेटर लाइफ, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड डिवोटी, अ गुड हस्बैंड, वाइफ, अ मदर। So willingness and taking, otherwise we can spend years together just hearing, just understanding, and also giving it to others, but not bringing change in my life because I'm not willing and I'm not taking actions towards the positive change. Actually, very nice example of our scripture is there. Hiranyakashipu versus Dhruva. हिरण्यकशिपु क्या थे? यूनिवर्स के सीईओ थे, थे ना, यूनिवर्स के सीईओ। सब सारे रिपोर्ट कर रहे थे उनको, सारे लोग, L1 रिपोर्टिंग, L2 सारे रिपोर्टिंग थी उनके देवताओं की। ध्रुव महाराज ने स्पिरिचुअल प्लैनेट एस्पायर नहीं किया था, उन्होंने बोला था ब्रह्मा से बेटर प्लैनेट चाहिए मेरे को। मतलब समवॉट देखा जाए तो सिमिलर गोल ही था ध्रुव महाराज का और हिरण्यकशिपु जो एग्जिस्टिंग स्टेटस था, सिमिलर गोल थे दोनों के, है ना। हिरण्यकशिपु के पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी थी। आपको पता है एक पूरा सेक्शन आता है श्रीमद् भागवतम में, जब वो इसको जो हिरण्याक्ष की जो वाइफ का क्या नाम था, हिरण्याक्ष's वाइफ, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द वाइफ, देयर इज अ फुल चैप्टर जिसमें हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की वाइफ को और अपनी मदर को स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने पूरा एक चैप्टर डेडिकेट कर दिया उसके लिए।
कन्वर्सेशन में, हिरण्यकशिपु। और वो इतना सही ज्ञान है जैसे भगवत गीता का ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान था वो। तो ही हैड स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल्सो। ध्रुव महाराज को जब स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफर करी गई ना, तो उन्होंने बोला नहीं। नारद मुनि को उन्होंने बोला कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। ही ऑनेस्टली टोल्ड, आई हैव अ मटीरियल डिजायर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? ही हैड स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस गाय वाज नॉट इवन देयर, बट व्हाट वाज द डिफरेंस? द डिफरेंस वाज देयर हार्ट। एक का हार्ट था विच वॉज हार्डन्ड विथ फॉल्स ईगो। मैं ही, मेरे में कोई बदला, मेरे को जो चाहिए मेरे को मिल जाए, पर मैं बदलूंगा कभी नहीं, यू नो। और राक्षसीय प्रवृत्ति इसको बोलते हैं। तो ध्रुव महाराज वॉज लाइक, ही हैड अ हार्ट विच वॉज नॉट ऑनेस्ट एंड विदाउट फॉल्स ईगो। He was ready for change। आपको पता है 5 साल का बच्चा क्या होता है? 5 साल के बच्चे को उसकी मदर एम्पावर कर रही है कि तुम जाओ। हम तो पढ़ के निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात क्या है, पास चलो निकले, चलो हो गया। 5 साल का बच्चा क्या होता है पता है आपको? 5 साल के बच्चे को उसकी मां बोल रही है, एम्पावर कर रही है कि द बेस्ट ओनली सोल्यूशन इज टू वर्शिप विष्णु। ऐसे नहीं सेंटिमेंटल होकर नहीं बोल रही है वो, शी वॉज एम्पावरिंग हर सन। और 5 साल के बच्चे ने वो एम्पावरमेंट लिया। बहुत बड़ी बात है वो एक्सेप्ट करना कि मैं मेरे सेट लाइफ को चेंज कर रहा हूं, आई एम टेकिंग एक्शन फॉर अ पॉजिटिव चेंज। ही टुक इट। और उसके बाद क्योंकि हिज हार्ट वॉज नॉट रिडल्ड विथ फॉल्स ईगो, व्हेन ही एक्चुअली सॉ लॉर्ड, ही डिड नॉट बिकम मोर एनवियस लाइक हिरण्यकशिपु। जो भी मैं चाह रहा था वो सब क्या था? ईस ऑफ ग्लासेस, यू आर द रियल वेल्थ। देखो दोनों को दर्शन हुए भगवान के। ध्रुव महाराज को भी दर्शन हुए, हिरण्यकशिपु को भी दर्शन हुए। ज्यादा दर्शन हिरण्यकशिपु को हुआ एक्चुअली स्पीकिंग, ध्रुव से भी ज्यादा दर्शन हिरण्यकशिपु को हुआ, पर बदलाव नहीं हुआ। फॉल्स ईगो, हार्ट वॉज हार्डन्ड विथ फॉल्स ईगो, not willingness to change oneself। तो अब आपको समझ में आ गया ना, पूर्णात पूर्णम उदच्यते। तो यहां पे हम किस लिए बैठे हैं? चेंज के लिए, मोटिवेटिंग टू गेट चेंज, एम्पावर्ड टू गेट चेंज्ड। ये हमारा मोटो है यहां बैठने का। क्या आप सब चाहते हैं कि वी गेट एम्पावर्ड फॉर चेंज? नहीं, यहां से तो माता जी ने बोला नहीं भाई, हमें लग रहा था आप हमारे पति को चेंज करोगे या पत्नी को चेंज करोगे। मेरे को क्यों चेंज करना है? मैं तो कैंप में इसलिए लेके आई हूं। तो सुनो, देखा, आर यू रेडी फॉर चेंज? हाथ नहीं उठाया तो मैं मानूंगा नहीं। आर यू रेडी फॉर चेंज? सो दैट इज वॉट वी आर हियर फॉर। Everything can be changed. Matter changes, you know. Conditioning भी material ही है. We can change it. Not a big deal. Okay. कई बार ये चेंज आसान होता है। अर्जुन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन लिया, ये सबका मिक्सचर होता है। ये 3 टाइप के मोटिवेशन होते हैं चेंज के लिए, ठीक है। सबसे पहला अर्जुन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन था ना, चेंज हुआ ना, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ सकता हूं, पूरी नॉलेज डाल दी क्यों नहीं लड़ना चाहिए। और उसका कंफ्यूज भी हो रहे हैं, डिप्रेस भी हो रहे हैं, पर फिर भी बोल रहे नहीं लड़ना मेरे को। रिलेट कर पा रहे हैं ना? अटके हुए हैं, जमे हुए हैं अपने स्टैंड पे, बैंड बज रही है लेकिन जमे हुए हैं अपने स्टैंड पे अर्जुन। बट बिकॉज ही वॉज सो इवॉल्व्ड इन कॉन्शियसनेस, बाय हियरिंग फ्रॉम लॉर्ड, ओपन हार्ट, सर्जरी कर दिया भगवान ने। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से चेंज हो गए, जस्ट बाय हियरिंग फ्रॉम लॉर्ड। यही मेरा धर्म है, माई ड्यूटी इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। सिंपल, देखा है तो बहुत सिंपल है। दिस इज ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, डू इट। दिस इज ड्यूटी ऑफ वाइफ फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, डू इट। वो सिंपल है, इसलिए तो बोला निष्काम कर्म योगा क्यों है, चैप्टर्स है ना भगवत गीता के,
क्यों है? कृष्णा सेज इन सेकंड चैप्टर की कंटिन्यू डूइंग योर ड्यूटीज फॉर व्हाट? फॉर लिबरेशन, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट। अगर तुम अपनी ड्यूटी करते रहोगे, तुम्हारे हार्ट में मटेरियल डिजायर है, तब भी तुम्हारे को आउटकम मिल जाएगा, तुम खुश हो जाओगे। और अगर लिबरेशन की चाह है, तब भी तुम्हारा हार्ट साफ हो जाएगा। तो तुम जितनी स्पिरिचुअल नॉलेज सुनोगे ना, वो डाइजेस्ट हो जाएगी सारी अच्छे से, ऊपर से नहीं जाएगी चिकने घड़े की तरह। सुना धाड़ बिकॉज वी आर हियरिंग विद मोड्स, यू नो, मोड्स, बोट नहीं, मोड्स। तो ये पहला होता है केस। पर कई लोग अर्जुन जैसे नहीं हो पाते, या हमारा कुछ कंपोनेंट, कुछ एरियाज में हम अर्जुन की तरह हैं, कुछ एरियाज ऑफ आवर लाइफ वी आर नॉट लाइक अर्जुन। हाँ, कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनली बहुत सही होते हैं, दे चेंज देमसेल्व्स वेरी क्विकली, ये करेंगे वो करेंगे ना, बहुत बढ़िया, बट पर्सनल लाइफ में आके उनकी हालत खराब हो जाती है एज अ स्पाउस। ओके, या कुछ पर्सनली अच्छे होते हैं, प्रोफेशनली उनको हिलने में टाइम लगता है। कुछ लोगों को दोनों में हिलने में टाइम लगता है, कुछ लोगों को स्पिरिचुअली हिलने में टाइम लगता है, कुछ लोग स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होते हैं, पर इन चीजों में दिक्कतें होती हैं। आपने गोल्स लिखे ना, हम लोग आएंगे उस पर। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इन स्क्रिप्चर्स इज मृगारी। मृगारी में चेंज कैसे हुआ? कॉज एंड इफेक्ट दिखा के। देखो, आप करते रहो, या कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं चेंज करना ना, करो। अब आप बताओ कि ये आप करते रहोगे तो क्या होगा? उसमें कुछ जादुई शक्ति मत डाल देना, कुछ बदल जाएगा। जैसे बस आप करते रह रहे हो ना, ये करते रहोगे तो क्या होगा? जैसे मैं कुछ इन्फेक्टेड एरिया में जा रहा हूं, जाता रहूंगा तो क्या होगा? इन्फेक्ट होऊंगा। तो कॉज एंड इफेक्ट, मृगारी के लिए कॉज एंड इफेक्ट किसने किया था? नारद मुनि ने। तो कई बार हमको भी मोटिवेशन टू चेंज के लिए क्या लगता है? कॉज एंड इफेक्ट। आप करो, ये पैटर्न है ना आपका काम करने का, करो, चलो करो, वेरी गुड। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। डिवोर्स के लिए तैयार हो? नहीं 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 प्रभु, वो नहीं चाहिए। कोर्ट के चक्कर काटने हैं? नहीं नहीं नहीं, मोटिवेशन टू चेंज। तो फिर चेंज करो। थोड़ा लोअर लेवल है, बट क्या करें। एक होता है कि कॉज एंड इफेक्ट कोई दिखा भी देना, तब भी गिरता नहीं। जैसे फिर से नारद मुनि, हमारे नारद मुनि हर जगह आ जाते हैं। उन्होंने किसकी कहानी सुनाई? पुरंजन की। पुरंजन था ही नहीं, इमेजिनरी कैरेक्टर था। पर वो जरूरी होता है कई बार हमें। आप ये मत सोचे कि हम सब में ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं, मेरे अंदर भी हैं, इनके अंदर भी हैं, हम सबके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम सुन के सीख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कुछ कंपोनेंट्स में दिखाना पड़ता है, कुछ कंपोनेंट्स हमें किसी और का एग्जाम्पल सुनते हैं तब थोड़ा हिलते हैं हम लोग कि ऐसा हुआ। फिर उसको स्टडी करते हैं, फिर हमें समझ में आता है, अरे ये तो मैं ही था, ये तो मैं ही थी, या इसका कुछ कंपोनेंट मैं ही था, मैं था। केस स्टडी मेथड, पुरंजन इज अ फर्स्ट केस स्टडी। तो इस बार हमने क्या इंट्रोड्यूस किया एनएस कैंप में? केस स्टडीज। तो इस एनएस कैंप में हम ये तीनों चीजें करने वाले हैं। विल टॉक अबाउट टॉपिक्स, विल टॉक ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और हम क्या बात करेंगे? केस स्टडीज, भर के केस स्टडीज। आप सब ने प्रेजेंट करना है केस स्टडीज, ठीक है ना?